Good morning, student. Now we are going to take the trigonometric identities. So in the first video, I already explained what is meant by the identities. Okay. So in this video, we explain all the identities of trigonometry. That is the trigonometric identities. Okay. Clear? Now in previous video, we completed the second exercise, exercise 8.2. which is related with the trigonometric ratio of some specific angle. Specific angle में हमने पढ़ा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. पहले साइन का वैल्यू पुट अप करेंगे हम लोग, ध्यान में रखेंगे. साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 दैट इज 1. उसके बाद कॉस निकाला था, कॉस के बाद टैन, टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद कोसेक एंड आफ्टर लास्ट वन इज द सेक. नाउ वी सी द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. हियर वी एक्सप्लेन थ्री आइडेंटिटीज. नंबर 1, द फर्स्ट आइडेंटिटी इज sin square theta plus cos square theta is equals to 1. सबसे पहला आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Second identity is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. This is of your second identity. And the third one is 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Now instead of theta, if I put here x, so the same identities apply. sin square x plus cos square x is equals to 1. क्योंकि आइडेंटिटी में हमने पहले ही बता दिया है कि if the angle changes, this identity never be change. Okay? So here we start the identity, and for that we want here one right angle triangle. एक right angle triangle बनाया हमने, इसको नाम दिया हमने ABC. Okay? B 90 डिग्री हो गया, एंगल C हो गया थीटा. Got it? Here we find all trigonometric ratio with related to the angle theta. So here we have sin theta is equals to opposite side upon hypotenuse. Therefore sin theta is equals to AB upon AC. This is the value of sin theta. Now second value cos theta. cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड दैट इज BC अपॉन AC. tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? AB अपॉन BC. ये मिले आपको तीनों रेशो. उसके बाद में cosec थीटा इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB. गॉट इट? sec थीटा इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC. And the last one is cot theta is equals to BC upon AB. So these are all trigonometric ratio with related to this angle theta. Now we find this identity sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Got it? Here we apply the Pythagoras theorem. So by using Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equals to AC square by Pythagoras theorem. Understood? अब यहां पे AB square plus BC square is equals to AC square है. हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे AB square से, उसके बाद BC square से डिवाइड करेंगे, और लास्ट वन हम लोग AC square से डिवाइड करेंगे. 1 by 1 डिवाइड करेंगे. AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और BC स्क्वायर से. हमको चाहिए सबसे पहली आइडेंटिटी, तो हम क्या करेंगे? यहां पे AC स्क्वायर की जगह 1 चाहिए, इसलिए we divide both side by AC स्क्वायर. So this is equation number 1. इसको 1 दे देते हम लोग. Here divide both sides by AC स्क्वायर. AC स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर
इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अंडरस्टूड हुआ? समझ गए आप? ध्यान में आ गया? क्या किया हमने? AC स्क्वायर से डिवाइड किया तीनों टर्म को, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। Now AB square upon AC square can be written as AB upon AC whole square plus BC upon AC whole square is equals to 1. Now we see the trigonometric identity. AB upon AC can be written as sin theta. AB upon AC किसका वैल्यू है? sin theta का वैल्यू है. So I will write here sin theta and its square plus BC upon AC. This is the value of cos theta. So we write as a cos theta and its square, and that is of equals to 1. So I already explained sin theta and its square can be written as sin square theta. This is nothing but the cos square theta, and this is of your 1. So this is of your first identity. The same identity यहां से हम लोग दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं, और वो है 1 minus sin square theta is equals to cos square theta, and 1 minus cos square theta is equals to sin square theta. समझ गए? मींस यहां पे हमने पहली आइडेंटिटी फाइंड आउट की है। सबसे पहली आइडेंटिटी है sin square theta plus cos square theta is equals to 1. इससे हमने दो फॉर्मूले और फाइंड आउट किए, एक एक को ट्रांसफर करके। So here 1 minus sin square theta become cos square theta, and 1 minus cos square theta becomes sin square theta. तो जहां पे भी sin square आता है वहां पे आप 1 minus cos square रख सकते हो, और जहां पे cos square आता है वहां पे 1 minus sin square रख सकते हो। इतना समझ गए हम? इतना ध्यान में आ गया? तो जिस तरह से हमने डिवाइड किया AC स्क्वायर से, तो आपको पहला आइडेंटिटी मिला। अब ये आइडेंटिटी का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी? आपकी आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, इफ द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, फाइंड all trigonometric ratio of angle theta, therefore what we write here, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Therefore we want here, what we want here, sin, the value of sin is given, and we want to find the value of cos theta. So for that cos theta we will apply the first identity, and if we put the value of sin theta as a 3/5 and making the square of 3/5, we get the value of cos theta. And once you know the value of sin theta and cos theta, you can find any other ratio. Okay? Now here means either sin theta is given or cos theta is given, we can apply this identity. तो ये आइडेंटिटी कब अप्लाई करेंगे? जब हमको sin थीटा दिया है और बाकी रेशियो निकालना है, तब ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। और यदि हमको cos थीटा दिया है और sin थीटा निकालना है, या फिर बाकी की आइडेंटिटी, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, then we apply this identity. So this identity is applicable only when the sin or cos is given. Got it? अब ये एग्जांपल हमने पहले ही सॉल्व किया by using the Pythagoras theorem. Now by using the identity, how can we solve this? That we will be see afterward. Okay? तो पहले हम लोग देख लेंगे कि आइडेंटिटीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो देख लेंगे। अब यहां पे हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये पहला आइडेंटिटी हमको फाइंड आउट हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? BC स्क्वायर से। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय BC स्क्वायर। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। और जब BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को, तो आपको क्या मिलेगा? AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। गॉट इट? अब AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर मींस व्हाट?
AB अपॉन BC का स्क्वायर। ये क्या मिलेगा 1 और ये क्या मिलेगा आपको AC अपॉन BC and its square. Now from the trigonometric ratio AB upon BC, this is nothing but the tan theta. क्या है ये tan theta. So we can write as a tan theta and its square can be written as tan square theta plus 1 is equals to AC upon BC किसका वैल्यू है sec theta. So can be written as sec square theta. मिल गया. तो सेकेंड आइडेंटिटी हमको फाइंड आउट हुई. क्या आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. यहां पे दो वैल्यू हम लोग और निकाल सकते हैं. सबसे पहला 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये आ गया पहला वैल्यू. दूसरा वैल्यू आएगा यहां पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. Means according to the example you can apply these identity. Understood? अब ये आइडेंटिटी कब अप्लाई करेंगे आप लोग tan square theta plus 1 is equals to sec square theta. Whenever the value of tan or sec is given, you can apply this identity. Understood? Now we will see the third identity. तीसरा आइडेंटिटी के लिए अभी बचा कौन है मेरे पास. मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, BC स्क्वायर से भी डिवाइड कर लिया. अब बचा है मेरा AB स्क्वायर से, तो हम लोग AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. डिवाइड बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर. AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. एंड व्हेन वी डिवाइड बोथ साइड बाय AB स्क्वायर, व्हाट वी विल गेट हियर AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर is equals to AC square upon AB square. So finally we got AB square plus AB square, that is 1. BC upon AB whole square, BC upon AB and its square is equals to AC upon AB and its square. So this is of your 1 plus BC upon AB. The value of BC upon AB is nothing but cot theta. So we can write is a cot square theta, square होने के कारण. यहां पे AC upon AB क्या वैल्यू है AC upon AB, this is cosec theta. So we will write here cosec square theta. Got it? So this is of your third identity. Means 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. And again we got here two more value, two more formulae, that is 1 is equals to cosec square theta minus cot square theta. ये एक मिलेगा आपको और दूसरा मिलेगा cot square theta is equals to cosec square theta minus 1. Got it? So we have 6 formulae. अब ये 3 formulae, total 9 formulae बने. अब ये 3 आइडेंटिटी से हमको और दो वैल्यू मिली, दो फॉर्मूले मिले. तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 आइडेंटिटी. द फर्स्ट आइडेंटिटी sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Second identity 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, and the third one is 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. By using this identity, ये वाला आइडेंटिटी कब अप्लाई करने के लिए बोला मैंने, जब हमारे पास या तो साइन हो या फिर कॉस हो, तब फर्स्ट आइडेंटिटी. यदि हमारे पास में tan और sec है तो सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. एंड व्हेन वी हैव द वैल्यू ऑफ आइदर cot or sec, we can apply, cosec, we can apply the third identity. Now we see one by one, if sin theta is given, which value we apply, which identity we apply. If tan is given, which identity we apply, and if sec is or cosec is given, which identity we will apply. एक एग्जांपल हम लेंगे. If sin theta is equals to 3 upon 5, find all trigonometric ratio of angle theta. ये एग्जांपल है. Got it? अब इसी एग्जांपल को मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूं. सबसे पहले वाले जो हमने पढ़ा था, जैसे एक ट्रायंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, उसको नाम दिया ABC, उसके बाद में थीटा ले लिया, उसका अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस, बीच बाद में थर्ड साइड हमने फाइंड आउट किया. किससे फाइंड आउट किया था? पाइथागोरस थ्योरम से.
means all three values we got, and after finding all three values we can find the remaining trigonometric ratio. अब यहां पे हमको वो नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट आई विल फाइंड हियर. ओके, सो सॉल्यूशन. ओके, नाउ here the which value is given, the sin theta is given, and if the sin theta या फिर cos theta is given, we can apply the first identity, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. sin square theta plus cos square theta is equals to 1. हमारे पास किसका वैल्यू अवेलेबल है, sin theta, तो हम इसी फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. आप क्या कर सकते हो, यदि यहां पे आपको cos दिया होता तो आपने क्या लिखा होता, sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. यदि cos दिया तो, अब यहां पे sin दिया तो हमने क्या अप्लाई किया, cos square theta is equals to 1 minus sin square theta, that is 1 minus 3 upon 5 और उसका क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि sin square का मतलब हो गया sin theta and its square. Okay, therefore that is 1 minus 9 upon 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा इधर डिनोमिनेटर में, यहां पे हो गया 25 minus 9, that is 16 upon 25. This is the value of cos square theta, therefore cos theta is equals to 4 upon 5. मिल गया cos, इजीली मिल गया cos. अब cos यदि आपके पास है तो आप कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 1 by 1 चेक करते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग निकालेंगे tan थीटा. अब tan का रिलेशन आपको पता है sin और cos के साथ है, so that is of equals to sin theta upon cos theta. sin theta का वैल्यू क्या है आपके पास 3 upon 5 और cos theta का वैल्यू 4 upon 5. then tan theta is equals to this 5 get cancel, answer is 3 upon 4. कितना इजी है इजी. उसके बाद में चाहिए मुझे कोसेक थीटा. अब कोसेक का मतलब क्या हो गया रिलेशन में 1 upon sin थीटा. So 1 upon 3 upon 5, so that is of equals to 5 upon 3. This is the value of cosec theta. ये आ गया cosec theta. Understood हुआ. वैसे ही आपको चाहिए sec theta. तो sec theta मींस किसका रेसिप्रोकल है, cos का रेसिप्रोकल है. तो क्या मिलेगा 1 upon 4 by 5. So what we will get 5 upon 4. This is the value of sec theta. अब बचा कौन आपके पास, cot theta बचा, और cot किसका रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल है. So cot theta is equals to क्या 1 upon tan theta, that is equals to 1 upon 3 upon 4, that is 4 upon 3. This is the value of cot theta. Understood हुआ. तो ये आइडेंटिटी हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास में या तो साइन हो या फिर cos हो, हम लोग ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. अंडरस्टूड हुआ. अब हम देखेंगे दूसरा एक एग्जांपल जिसमें हमको अप्लाई करना है सेकेंड आइडेंटिटी, और उसके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं. सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हम लोग. इफ sec theta is equals to 5 or 13 upon 12, find all trigonometric ratio of angle theta. Easy, easiest है. अब sec थीटा दिया है तो हम सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. यहां पे देखो sec से हम लोग cos निकाल के पहला वाला आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं. अब कोई बच्चे पूछेंगे कि क्या सर हम लोग पहला आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, sec से पहले cos निकालो और cos निकाल के पहला आइडेंटिटी अप्लाई करो. अब हमारे पास में sec दिया तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड आइडेंटिटी. गॉट इट. सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. So tan square theta is equals to sec square theta minus 1. Got it? Means आपके पास sec का वैल्यू दिया है तो ये वाला अप्लाई करेंगे हम लोग. So tan square theta is equals to sec square theta means 13 upon 12 का स्क्वायर minus 1 upon 1. 13 का स्क्वायर कितना 169, मुझे नहीं पता है कि 196 है, 169 चेक कर लेंगे. 13 into 13, 3 3 जा 9, 3 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 1 जा 1. तो 169 minus upon 12 means 144 minus 1 upon 1. So 169 minus 144 divided by कितना 144. सब्ट्रैक्शन कितना हुआ
25 upon 144. So this is the value of tan square theta. So that is tan theta is equals to 5 upon 12. मिल गया आंसर। अब tan तो आपके पास आ गया, आपके पास sec भी है, तो sec से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? cos फाइंड आउट कर सकते हैं। तो cos फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 upon sec थीटा। इजी वे से जाएगी आप लोग। गॉट इट? इजी वे से जाएगी। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 upon sec का वैल्यू कितना है? 13 upon 12. Then cos theta is equals to 12 upon 13. कभी भी ध्यान में रखेंगे sin और cos में न्यूमरेटर स्मॉलर और डिनोमिनेटर ग्रेटर। न्यूमरेटर स्मॉलर और डिनोमिनेटर ग्रेटर किसमें? sin और cos में। वैसे ही sec और cosec में न्यूमरेटर ग्रेटर और डिनोमिनेटर स्मॉलर, क्योंकि एमसीक्यूज में आते हैं कि is 5 upon 3 is the value of sin theta, तो वहां पे वो सेंटेंस कैसा हो गया? रॉन्ग, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ये साइन का वैल्यू नहीं हो सकता। साइन का वैल्यू कैसा होना चाहिए? न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। तो आपने कॉस निकाल दिया, अब हमको चाहिए साइन। तो आपके पास में tan का फॉर्मूला है, क्या है? tan इज इक्वल्स टू क्या हो गया? sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलो cos को ट्रांसफर किया, सो tan थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। देयरफॉर tan का वैल्यू कितना आ गया आपका? 5 अपॉन 12। cos का वैल्यू कितना आ गया? 12 अपॉन 13, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू sin थीटा। देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल्स टू 12 कैंसिल, आंसर इज 5 अपॉन 13। वीडियो को 3-4 बार देखो, तुरंत समझ में आएगा। ओके, आ गया साइन थीटा। अब साइन से निकालेंगे कोसेक। सो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज 1 अपॉन 5 अपॉन 13। इट मींस 13 अपॉन 5। आप कोई भी वैल्यू चेक कर लीजिए कोसेक का, उसका न्यूमरेटर ही ग्रेटर दिखेगा आपको। ये हो गया कोसेक। अब एक ही वैल्यू बचता है कॉट, और कॉट किसका रेसिप्रोकल है? tan का रेसिप्रोकल है। देयरफॉर दैट इज 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 5 अपॉन 12। सो दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यूज। इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यूज। Now this is the assignment for you people. These are the 5 questions and you will solve all the 5 questions by using these identities. Sin square theta plus cos square theta 1, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta.